Hello guys, welcome to this channel. In this session, we are going to do 30 PYQs, that is previous year questions from the modern history, and these questions are asked in the previous SSC examination which are conducted from 2010 to 2023. So this is the first part, and if you are preparing for any competitive examination, then these questions are very helpful for you. So let us start with the first question. First question is, the Treaty of Sagali was signed between the British and the A option is Gorkhas, B option is Nawab of Bengal, C option is Nawab of Awadh, and the last option is Marathas. So the right answer of this question is option A, that is Gorkhas. So there are a little bit of explanation, that is the Treaty of Sagali was signed on 2nd December 1815. The year is date is also very important, so अच्छे से याद रखिएगा. That is Treaty of Sagali signed होती है 2nd December 1815 को किसके बीच में? बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द गोरखास following the Anglo-Nepalese War of 1814 or 16. Okay. Now the next question is, which of the following places was ruled by the Wadia dynasty? A option is Mysore, B option is Guwahati, C option is Jabalpur, and D option is Patna. So the right answer is option A, that is Mysore. Here are explanation, that is the Wadia dynasty was a Hindu dynasty. ये एक Hindu dynasty थी in Indian subcontinent that ruled the kingdom of Mysore from 1399 to approximately 1950 or 1947. So from 1760 to 1799, the rule of the dynasty was essentially nominal, with the real power in the hands of Hyder Ali and his son टीपू सुल्तान. इसका मतलब जो ये डायनेस्टी थी, इसने मैसूर के ऊपर जो है रूल किया फ्रॉम 1399 टू 1950, और जो ये टाइम पीरियड रहा, दैट इज 1760 से लेके 1799 तक, इसमें जिसकी पावर थी वो नॉमिनल थी, सिर्फ बोलने के लिए था. जो रियल पावर थी मैसूर की, वो किसके हाथों में थी? वो थी हैदर अली के हाथों में, और फर्दर उसके बेटे के हाथों में जो थे टीपू सुल्तान. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सफदरजंग tomb set in the middle of a garden was built by Nawab Shujauddaulah in. तो जो ये सफदरजंग टोम है, ये कहाँ पर बिल्ट हुआ है? ए ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी ऑप्शन दिल्ली, एंड डी इज बिहार. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दिल्ली. सो हेयर आर द लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन. आप देख सकते हो, आप यहाँ से ये याद रख सकते हो कि ये बिल्ट कब किया गया था. सो इन द ईयर 1754. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड for the exploitation of trade with East and Southeast Asia and India? A option is 1612, B option is 1605, C option is 1600, and D option is 1596. So the right answer is option C, that is 1600. So here are explanation, that is East India Company was in English, you all know about that, and later British Joint Stock Company that was incorporated by the Royal Charter on December 31st 1600. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? सो वो हुई थी December 31st 1600. आपको सिर्फ 1600 याद रखना है, और ये एक इंग्लिश कंपनी थी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा लैंड इन कैलिकट और कोझिकोडे? ए ऑप्शन इज 1442, बी ऑप्शन इज 1458, C option is 1472, and D option is 1498. Very easy and a very important question. So the right answer is option D, that is 1498. And आपको इनकी complete date याद रखनी है. That is Vasco da Gama arrived at Calicut in Malabar, Kerala on May 20th, 1498. And he was welcomed by Zamorin. कौन किंग थे जिन्होंने इनका वेलकम किया था? वो थे जमोरिन, और जमोरिन ने इनको हेल्प की टू एस्टेब्लिश अ सीरीज ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद द इंडियन स्टेट्स. राइट. सो किंग जमोरिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा. Next question is, in the year blank, that is the Maratha Empire ceased to exist with the surrender of the Marathas to the British, ending the Third Anglo-Maratha War. जो ब्रिटिशर्स एंड मराठा के बीच में वॉर हुआ था, तो जो थर्ड मराठा वॉर था, ये लास्ट वॉर था. इसके बाद जो मराठा से उन्होंने सरेंडर कर दिया था टू द ब्रिटिशर्स, तो वो कौन सा ईयर था? ए ऑप्शन इज 1792, बी ऑप्शन इज 1811, सी ऑप्शन इज 1818, एंड डी ऑप्शन इज 1806. So the right answer is option C, that is 1818. Right. So here are explanation, that is the third Anglo-Maratha war, जो कि होता है 1817 to 1818, was the final and the decisive conflict between the British East India Company and the Marathas in the India. So इसमें क्या होता है फिर? पेशवा surrendered in the year 1818. Okay. Next question is, in which year did the Convention of Vadgaon take place? A option is 1779, B option is 1789,
C option is 1769 and D option is 1799. So the right answer is option A, that is 1779. So here is the explanation, that is the Convention of Vadgaon was signed on 13th January 1779 after the First Maratha War. ये कब साइन होती है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब होता है? 1775 to 82, and it marks the end of the British efforts to intervene in Maratha affairs by making Raghunath Rao Peshwa the nominal leader of the Maratha Confederacy. ओके एंड यस गाइस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है 2 वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करूंगी। उन दोनों वीडियोस या सेशन में जो है मैंने जितने भी मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट वॉर हैं वो उन 2 वीडियोस में जो है कवर अप किए हैं। सो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, राइट। सो इस सेशन को देखने के बाद आप वो देख सकते हो अगर आपको जो है जरूरत लगती है उनको देखने की, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following was beaten by the Britishers in 1799 War of Srirangapatnam? A option is Nazib Jung, B option Tipu Sultan, C option is Sirajuddaulah, and D option is Peshwa. So the right answer is option B, that is Tipu Sultan. Here is the explanation, that is in the 4th Anglo-Mysore War 1799, the British army led by Lord Wellesley attacked and defeated Tipu Sultan. He met a heroic death on 4th May 1799 while defending his capital Seringapatam. Okay. So next question is, who ruled Mysore under a subsidiary alliance with the British after defeat of Tipu Sultan at the Battle of Srirangapatnam? A option is Gangas, B is Kandavas, C option is Wadiyars, and D option is Pandyas. So अगर आपने प्रीवियस मैंने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, अगर उसको अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर गेस कर पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज वाडियार या वोडियार डायनेस्टी। तो हेयर इज द एक्सप्लेनेशन, दैट इज जो 4th एंग्लो-मैसूर वॉर जो कि 1799 में होता है, हमने अभी डिस्कस किया, उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और मैसूर के ऊपर हमने प्रीवियस डिस्कस किया था दैट उसके ऊपर जो है वाडियार डायनेस्टी रूल कर रही होती है। लेकिन जब हैदर अली के आने के बाद जो है उनकी पावर बहुत कम हो जाती है और रियल पावर जो होती है वो उनके हाथों में चली जाती है, हैदर अली के और उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथों में। लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की, तो जो पावर होती है वो वापस से किसको दे दी जाती है? वाडियार डायनेस्टी को। ओके, now the next question is, who became the Nawab of Bengal after the death of Alivardi Khan in 1756? A option is Mir Jafar, B option Murshid Quli Khan, C option Sirajuddaulah, and D option is Suja Khan. So the right answer is option C, that is Sirajuddaulah. Here is the explanation that Sirajuddaulah जो है आफ्टर अलीवर्दी खान जो नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं वो थे सिराजुद्दौला इन अप्रैल 1756 एट द एज ऑफ 23। तो इसके बाद क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी होता है जो होता है 1757, याद रखिएगा। वो होता है नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में, दैट इज सिराजुद्दौला के बीच में। पर सिराजुद्दौला की जो कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था मीर जफर, वो इनके साथ जो है धोखाधड़ी करते हैं और जो है जिसकी वजह से जो है सिराजुद्दौला ये बैटल हार जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? एक तरफ से जो है ब्रिटिशर्स का रूल हो जाता है ओवर द बंगाल एंड लेटर ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडिया। तो आपको एक पॉइंट यहाँ से और याद रखना है, दैट इज द थर्ड पॉइंट, जो ये सिराजुद्दौला थे, ही वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, representatives of the Maratha Empire and the British East India Company signed the Treaty of Salbai in which year? A option is 1782, B option is 1769, C option is 1758, and the last option is 1771. So the right answer is option A, that is 1782. जो ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है इसको साइन किया जाता है इन द ईयर 1782। Here is the little bit of explanation। जो ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है ये किसके बीच में साइन होती है? बिटवीन मराठास एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 17 मई 1782 टू सेटल आउट द आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और ये कब साइन होती है? जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था उसको सेटल डाउन करने के लिए। ओके, एंड अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी द ब्रिटिश एक्नॉलेज्ड माधवराव एज द पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? A option is Warren Hastings, B option is John Macpherson, C option is second Earl Cornwallis, and D option is John Shore. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेकंड अर्ल कॉर्नवालिस। जो गवर्नर जनरल थे ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वो कौन थे? वो थे सेकंड अर्ल कॉर्नवालिस। तो हियर आर द एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख सकते हो। जो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, यहाँ से आप ये याद रख सकते हो दैट इज ये कब हुआ? 1790 से लेके 1792 तक। जो ये किसके किसके बीच में हुआ? सो द ट्रिपल अलायंस ऑफ मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द ब्रिटिशर्स, जो किसके अगेंस्ट लड़े थे? अगेंस्ट द टीपू सुल्तान।
ओके और इसके बाद में साइन होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, वो साइन बाय द टीपू सुल्तान इन द ईयर 1792। मतलब जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम थी ये किसकी आउटकम थी या सेटलमेंट थी, सो इट इज द सेटलमेंट ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड शुजाउद्दौला एंड शाह आलम साइन ट्रीटी एट इलाहाबाद विद रॉबर्ट क्लाइव। तो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो जो है रॉबर्ट क्लाइव ने इन दो पर्सन के साथ दैट इज शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू जो कि थे उस टाइम के मुगल एम्परर। ओके तो ये कब साइन हुई? ए ऑप्शन इज 1766, बी ऑप्शन इज 1767, सी ऑप्शन इज 1764 एंड डी ऑप्शन इज 1765। So the right answer is option D, that is 1765. Here is the explanation, that is Treaty of Allahabad signed on August 12, 1765 between Mughal Emperor Shah Alam II and Robert Clive as a result of the Battle of Buxar। ये कौन से मतलब किसकी आउटकम थी ये वाली ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सो ये थी बैटल ऑफ बक्सर जो होता है 1764 में, और इसके बाद 1765 में जो साइन होती है वो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है आप इसको देख सकते हो, दैट इज शाह आलम II जो कि मुगल एम्परर थे उस टाइम के, वो दीवानी राइट्स जो है किसको दे देते हैं? ब्रिटिशर्स को। एंड नवाब अवध जो थे शुजाउद्दौला जिन्होंने टेक पार्ट किया था इस बैटल में, उनको 50 लाख जो है ब्रिटिशर्स को देने पड़ते हैं जो एज अ कंपनसेशन होता है वॉर का। So next is who among the following was the Nizam of Hyderabad in 1947? A option is Mir Mehboob Ali Khan, B option is Osman Ali Khan, C option is Akbar Ali Khan and D option is Nasir Jung. So right answer is option B, that is Osman Ali Khan. Here is the explanation, that is Mir Osman Ali Khan was the last Nizam of the princely state of Hyderabad। और जो ये state of Hyderabad, princely state of Hyderabad थी, it is the largest princely state in British India, right? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलीवर्दी खान वॉज अ नवाब ऑफ। आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो, हमने प्रीवियस ही किया। ए ऑप्शन इज दक्कन, बी इज मालाबार, सी ऑप्शन इज अवध एंड डी इज बंगाल। तो अलीवर्दी खान वॉज अ नवाब ऑफ बंगाल, और अलीवर्दी खान को सक्सीड करने वाले कौन थे? वो थे सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी और पुडुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर। ए ऑप्शन इज 1761, बी ऑप्शन इज 1699, C option is 1674 and D option is 1738. So right answer is option A, that is 1761. आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये किसकी मतलब इन्होंने कैप्चर किया था या उसकी कंट्रोल उसके ऊपर जो है उसको जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, तो वो था ट्रीटी ऑफ पेरिस इन जो साइन होती है इन 1763। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज। A option is 1956, B option is 1959, C option is 1961 and last option is 1967. So the right answer is option C, that is 1961. Here, Indian Army freed Goa from the Portuguese on 17 December 1961 and the जो इसके ऊपर जो आर्मी का जो वो ऑपरेशन था जो चलाया था उसको फ्री करने के लिए, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। एंड इसके बाद जो पुर्तगाल को जो रूल करे थे उसके गोवा के ऊपर, उनका एंड हो जाता है, और उन्होंने कितना टाइम उस पर रूल किया था? सो वो था 451 ईयर्स। Next question is in which year was the second Anglo-Mysore war fought between the Kingdom of Mysore and the British East India Company? A option is 1785 to 1789, B option is 1769 to 1775, C option is 1766 to 1769 and D option is 1780 to 1784। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था तो उसका टाइम पीरियड था 1780 से लेकर 1784 तक। ओके सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसकी जो आउटकम थी ये वॉर एंड होता है, दैट इज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड होता है विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ जो साइन होती है 1784 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट डे कोलकाता वाज फाउंड बाय द अमलगमेशन ऑफ 3 विलेजेस दैट इज कैलकाटा, गोविंदपुर एंड ब्लैंक इन द ईयर 1690। ए ऑप्शन इज सैमसिंग, बी ऑप्शन इज बखाली, सी ऑप्शन इज रिम्बिक एंड डी ऑप्शन इज तुनुती। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज तुनुती। तो हेयर इज द एक्सप्लेनेशन, दैट इज हाँ यहाँ से आपको एक याद रखना है, दैट इज जो कलकत्ता की एस्टेब्लिशमेंट थी वो किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है। सो आपको नाम याद रखना है, जॉब चॉर्नोक। ओके सो इन्होंने की थी इन द ईयर 1690, और वो 3 विलेजेस यहाँ पर मेंशन हुए हैं, दैट इज तुनुती, कोलकाता एंड गोविंदपुर। एंड लेटर ऑन इन 1699 ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड डेवलपिंग Calcutta as a presidency city. Next question is who among the following was the last Peshwa of the Maratha Empire? A option is Bajirao II, B option is Narayan Rao, C option is Raghunath Rao and D is Madhav Rao. तो जो लास्ट पेशवा ऑफ मराठा थे वो थे बाजीराव II, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड हियर इज द लास्ट पेशवा, दैट इज बाजीराव II was defeated by the British East India Company in the Battle of Khadki
विच वॉज अ पार्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जो लास्ट वॉर था ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में, वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था, और जिसमें कि जो है बाजीराव टू की जो डेथ हो जाती है, और इनकी जो डेथ होती है वो कौन सा बैटल था, सो वो था बैटल ऑफ खादकी या खड़की, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसराय ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन इज अल्फोंसो दे अल्बकर, सी ऑप्शन इज फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, सी ऑप्शन इज लोपो सोर्स दे अल्बर्गरिया, एंड डी ऑप्शन इज दुआर्ते दे मेंजिस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। तो फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसराय कौन थे, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। यहाँ पर आप इनकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो, और यहाँ से आपको याद रखना है दैट इज जो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा थे, जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो किसने दी थी, सो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने, राइट। सो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1856 गवर्नर जनरल ब्लैंक decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death descendants would be recognized as king, they would just be called princes। कौन ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1856 में ये डिसाइड किया कि जो बहादुर शाह जफर थे वो ही क्या जी लास्ट मुगल किंग रहेंगे, उसके बाद इनके जो आगे आने वाले वंशज होंगे वो जस्ट प्रिंसेस कहलाएंगे, मतलब उनकी उतनी पावर नहीं रहेगी। ए ऑप्शन इज केनिंग, बी ऑप्शन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन इज लॉर्ड हास्टिंग, एंड डी ऑप्शन इज लॉर्ड मुनरो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड केनिंग। तो गवर्नर जनरल केनिंग, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। एंड फॉलोइंग, इसके बाद क्या होता है, जो बहादुर शाह जफर थे, जब 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसमें जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं वो इनको जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट जो है उनको घोषित करते हैं, जिसकी वजह से मतलब इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है उस वॉर में, इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 में होने की वजह से जो है ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनको एक्साइल हिम टू द रंगून इन ब्रिटिश कंट्रोल बर्मा इन 1858। उनको जो है रंगून भेज देते हैं इन द ईयर 1858 आफ्टर कन्विक्टिंग हिम ऑन सेवरल चार्जेस। Next question is which of the following war ended with the Treaty of Salbai? A option is third Battle of Panipat, B is Battle of Buxar, C option first Maratha War, and D is second Anglo-Maratha War. So the right answer is option C, that is first Maratha War. So here is the explanation, आप इसको देख सकते हो। Now we move to the next question. Chandanagar was established as a French colony in 1673, obtaining permission from Blanc, the then Nawab of Bengal, to establish a trading post on the right bank of the river Hooghly. A option is Mansoor Ali Khan, B is Murshid Quli Khan, C option is Ibrahim Khan, and D is Mir Zafar. A C option is the right answer, that is Ibrahim Khan। जो नवाब ऑफ बंगाल थे उस टाइम के वो थे इब्राहिम खान। जब फ्रेंच कॉलोनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, चंदानगर को उन्होंने जो है फ्रेंच कॉलोनी बनाया था इन द ईयर 1673, जो थी ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर हुगली। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन। तो हम काफी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आई होप दैट यू नो द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1498 वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, हैड डिस्कवर्ड अ रूट टू। ए ऑप्शन इज इंडिया, बी इज ऑस्ट्रेलिया, सी इज चाइना, एंड डी इज जापान। तो हमने प्रीवियस ही किया दैट ये मई 1498 को इंडिया में आते हैं, जो कि एक पोर्टुगीज थे वास्को डी गामा, जो कैलिकट के पोर्ट पे पहुंचते हैं और इनको वेलकम किया जाता है जमोरिन किंग के द्वारा। सो इन्होंने रूट डिस्कवर किया था मींस इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन। कौन से ईयर में जो है फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी बंगाल में ऑन द बैंक ऑफ हुगली। ए ऑप्शन इज 1671, बी इज 1641, सी ऑप्शन इज 1661, एंड डी ऑप्शन इज 1651। So the right answer is option D, that is 1651. Here is little bit of explanation, you can go through it. Next question is Awadh was annexed by the British in which year? A option is 1845, B is 1856, C option 1838, and D option is 1859. The right answer is option B, that is 1856. Next question is, यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज द किंगडम ऑफ अवध को अनेक्स किया जाता है बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय द लॉर्ड डलहौजी, और उस टाइम के जो किंग थे उसके वो थे नवाब वाजिद अली शाह। और ये एकमात्र ऐसे ओनली ग्रेट इंडियन स्टेट, ये एकमात्र ऐसी इंडियन स्टेट थी जिसको जो है अनेक्स किया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनटॉलरेबल मिसगवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। फर्स्ट इज द सवार, it means man of horses. Second is a musket, it means a heavy gun used by the infantry soldier. So here are four codes. Correct one is option C, that is both 1 and 2. It means सवार का means होता है man of horses and musket का means होता है a heavy gun used by the infantry soldiers.
सो जब ईस्ट इंडिया ने जो है अपना रूल करना शुरू किया तो उन्होंने आर्मी को जो है जब उन्होंने आर्मी की रिक्रूटमेंट की तो उनको जो है एक नाम दिया गया, दैट इज यहाँ पर है सवार, इसका मतलब है मैन ऑन हॉर्सेस, मस्केट का मतलब है हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर, एंड मैचलॉक का मतलब है एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट क्रेडिटेड टू लॉर्ड डलहौजी? A option is merger or annexation of Punjab, B option is merger or annexation of Burma, C option is merger of Mysore, and D is merger of Satara. So the right answer is option D, that is merger of Burma. So जो under the doctrine of lapse था, Satara was annexed by Britisher in the year 1848, Punjab annexed in 1849, और जो मैसूर था इसका annexation हुआ था in the year 1799, जो कि एक आउटकम था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का, जिसमें हमने प्रीवियस पे डिस्कस किया, जिसमें टीपू सुल्तान की जो है डेथ हो जाती है और मैसूर के ऊपर जो है दोबारा से जो रूल करती है वो थी वाडिया डायनेस्टी, राइट। सो आई होप गाइज दैट यू लव द कंटेंट, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and you can share with your friends, and for more videos please visit the description box, right? So we will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.